Good morning. In today's video, we discuss about the limitation of first law of thermodynamics and as well as the Carnot cycle. Basically, in the first law of thermodynamics, that the main limitations which first, second and third, the three main points which indicates the limitation of first law of thermodynamics. The first limitation is that direction. Second one is entropy, and third one is temperature. The three words direction, entropy and temperature. By these three words we explain the limitations of first law of thermodynamics. First one, the direction. The direction in the first law of thermodynamics, it doesn't explain the direction of the heat, at which place the heat comes from and at which direction the heat goes. It doesn't indicate the direction of the heat. So it is its limitation that it does not indicate the direction of heat. So this is the main limitation of the first law of thermodynamics. The second one, the entropy. In the first law of the thermodynamics, that it doesn't indicate the term entropy, because already we know that each and every substance there are several molecules in which that the entropy indicates. By this phenomena, entropy is not indicated. Entropy does not indicates in first law of heating. थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ है उसमें एंट्रोपी डजंट plays any role, and the third one is the temperature. Whenever the two body may be contact, then it doesn't indicates that how much the temperature of the body. That temperature, suppose that the two bodies, one is the hot body and another one is the cold body, then the transfer of the heat from one body to another body, then it doesn't indicate that how much the heat is to be transferred from one body to another body. So it does not indicates the temperature transfer of the two bodies which are in contact. So always the three main terms that indicates the limitation of the first law of thermodynamics. One is the direction, another one is the temperature, and last one is the entropy. So always in the direction, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन को शो नहीं करता है कि किस जगह से हीट आ रही है और कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। एंट्रोपी का कोई रोल नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, बट एंट्रोपी जो होती है दैट इट एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी सब्सटेंस, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल्स that exist in a subjected body, that the temperature while we giving the heat is transferred from one body to another body, from cold
cold body to hot body, or it's vice versa, hot body to cold body, then how much the temperature occurs from one body to another body. So these are the limitation of the first law of thermodynamics. The next topic that are important, that is the Carnot cycle. Already you know that a cycle in which the starting points and the end points must be contact from one point to the last point. तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म है साइकिल, it is the starting of the introduction of thermodynamics, that the cycle means this one is cycle 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट हुआ और ये क्लोज लूप बना के ये साइकिल होगा। ये जो कर्व है ये साइकिल है, ये जो कर्व है ये साइकिल है। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड का पॉइंट आपस में एक दूसरे से एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसिडेंट हो रहे हैं, या ऑल द क्लोज लूप दैट कंटेन्स ए साइकिल, तो साइकिल में जनरली आपका स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होके और एक क्लोज लूप बनाए, उसको ही हम बोलते हैं दैट इज द साइकिल। अब अगर हम बात करते हैं कि साइकिल्स कितने तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स की साइकिल को हम लोग ड्रा करते हैं। तो साइकिल होती है, अगर हम स्टार्ट करें तो जब जो सबसे पहली साइकिल है दैट इज द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, इसमें अगर देखें तो CAR जो है वो एक तरीके से साइलेंट है। नॉट साइकिल भी कई बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। कार्नोट साइकिल का जो मेन टर्म है वो होता है नॉट साइकिल, बट इन द रियल यूज वी आर इन प्रैक्टिस दैट कार्नोट साइकिल। स्टार्टिंग इज द कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल किस लिए यूज किया जाता है? अब इस साइकिल के बाद आप इंजन की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑपरेशन होता है इंजन में, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द डिफरेंट प्रोसेसेस अकर्स। कार्नोट साइकिल, देन ऑटो साइकिल। थर्मोडायनेमिक्स में आगे हम लोग ये सारी की सारी साइकिल्स स्टडी करते हैं। थर्ड वन इज द डीजल साइकिल। फोर्थ वन इज द Rankine cycle, Another one is the Atkinson cycle. Then sixth one is the Stirling cycle. So there are the various types of the cycles. In the refrigeration and air conditioning, we study the vapor power cycle and vapor absorption cycle, vapor compression cycle. So these cycles indicates that how much the working phenomena occurs during any process. So basically in the cycle we indicates that how the work done in the particular system, that to calculation by the PV diagram as well as for heat diagram we draw the TS diagram. So basically any cycle which indicates the how the working phenomena occurs in a particular system, that indicates by the its PV diagram. So today the basic cycle that is for the heat engine that works on Carnot cycle. So today we discuss about the how the Carnot cycle works and how to calculate the efficiency of Carnot cycle.
तो सबसे पहले हम लोग कार्नोट साइकिल का जो मेन डायग्राम है उसको समझेंगे। दिस डायग्राम, इसको हम बोलते हैं P, दिस वन इज B। प्रेशर, वॉल्यूम, देन दिस वन इज टेम्परेचर और एंट्रोपी, S, TS। अब इसका जो डायग्राम है कार्नोट साइकिल का, दिस इंडिकेट्स इन दिस वे। प्रोसेस 1, 2, 3, 4। जब हम TS डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे तो दिस प्रोसेस TS डायग्राम इज 1, 2, 3 and 4. Here in the PV diagram it indicates that how the work is done into the various processes. In the early that various type of the thermodynamics process I have already discussed, that isothermal process, adiabatic process, isochoric process, polytropic process and isochoric process. These are the various type of the thermodynamic process. So in this diagram that process, 4 processes occur, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। तो प्रोसेस 1 to 2, ये जो प्रोसेस है 1 से 2, ये गैस जो है दैट आर एक्सपेंड। तो प्रोसेस 1 से 2 दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। अब प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 दैट इज आइसोथर्मल। ये अगर 1 से 2 आइसोथर्मल है तो दिस वन इज द एडियाबैटिक expansion process। प्रोसेस 1 से 2 isothermal expansion process, process 2 to 3 that is adiabatic expansion process, process 3 to 4 3 to 4 ये अगर एक्सपेंड हो रहा है तो ये कंप्रेस हो रहा है। सो सिमिलरली दिस वन इज द आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 to 4 क्योंकि ये फॉरवर्ड हो रहा है तो एक्सपेंड हो रहा है, ये रिवर्स जा रहा है तो कंप्रेस हो रहा है। देन प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1 दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन process। There are the 4 processes. One is the isothermal expansion process, then adiabatic expansion process, then isothermal compression process, and then adiabatic compression processes. So we have to know that at which processes the work done is to be calculated. तो बेसिकली वर्क डन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये चेक करते हैं कि किस प्रोसेस में क्या वर्क डन है, इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। एक एक करके प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोसेस 1 to 2, दिस इज द डायग्राम। Okay, the 4 processes in the Carnot cycle, that process 1 to 2 isothermal expansion process, process 2 to 3 from this diagram. Here this is the expansion line, arrow goes forward, so this indicates that expansion line,
process 2 to 3 that is the adiabatic expansion line, process 3 to 4 that is the isothermal compression, and process 4 to 1 that indicates that adiabatic compression. तो अगर ये expansion हो रहा है, ये expansion हो रहा है, तो this line and this line the opposite direction is in the compression line. अब we have to calculate the total work done under this loop. PV डायग्राम में जो 4 प्रोसेसेस हैं उसमें हम एक एक करके वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. अब प्रोसेस 1 से 2, तो यहां पे प्रोसेस 1 से 2 W, प्रोसेस 1 से 2 वर्क डन W12, ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? P1 V1 ln V2 by V1, यही होता है इस प्रोसेस में. P1 V1 that is MRT1 ln V2 by V1. अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है और एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है. तो यहां नो ट्रांसफर ऑफ द हीट. Process 2 to 3 and process 4 to 3 that is the adiabatic expansion process as well as adiabatic compression process, so no transfer of heat, so there are no work done into this side, only work done into W3 4 that is P1 that process into the work done P3 V3 ln V3 by V4. अब इस डायग्राम में देखो, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर सेम है. T1 बराबर T2 और T3 बराबर T4. तो अगर हम MR T3 ले रहे हैं, that value work done in process 3 to 4, that process is MR T2 ln V3 by V4. यहां से वैल्यू होगी, that value T1 is equal to T2, यहां से T3 is equal to T4. अब we have to calculate the efficiency of Carnot cycle. Efficiency of Carnot साइकिल. इसकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी जो है दैट इट इंडिकेट्स दैट किसी भी साइकिल की इफिशियंसी जो होती है दैट इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. ठीक, वर्क डन जो नेट होगा दैट इज Q1 by Q minus Q2. मान लीजिए Q1 हीट है इनलेट पे और Q2 जो है वो आउटसाइड है. हीट सप्लाई इज Q1, दैट वैल्यू इज 1 माइनस Q2 by Q1. अब ये जो वर्क डन है W12 दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, so this value is for Q1 and this value is for Q2. Q12 या Q34 this process. So put the value, this value 1 minus MR T1 ln V2 by V1. Q2 की वैल्यू है, that value becomes here, put value of Q2 V3 by V4 divided by MR T1
V2 by V1। अब देखो यहां भी MRT1, यहां भी MRT1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट this efficiency, that is 1 minus MRT1 जो है आपका वो this value is becomes MRT2। this value है T1 की है और this value जो है that is T2। यहाँ T2 था तो यहाँ भी T2 आएगा, यहाँ T1 है तो यहाँ भी T1 आएगा। तो this value 1 minus T2 ln V3 upon V4 divided by T1 ln V2 by V1। देखिए वर्क डन इफिशियंसी का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q2 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू पुट करेंगे। Q2 जो होगा दैट वैल्यू इज MRT2 ln V3 बाई V4। Q1 की वैल्यू जो होगी दैट इज MRT1 ln V2 बाई V1। अब MR कट जाएगा, T2 बाई T1 दैट टर्म बिकम्स दिस इज द term of into V3 by V4, but in the equation T2 by T1 that is equal to V2 by V1 raised to the power gamma minus 1, and similarly T4 by T3 that value is equal to V4 by V3 over gamma minus 1। अब जो डायग्राम हमने टीएस डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम दिस वन टीएस 1 2 3 4, यहां से T2 जो है वो T1 के इक्वल, T3 जो है वो T4 के इक्वल। तो T2 बाई T1, T2 बराबर T1 और T3 बराबर T4। तो यहां से अगर हम लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग equation 3 and 4, this becomes T2 by T1 is equal to T4 by T3, that value is V2 by V1 is equal to V4 by V3। T2 by T1 this value is equal to the, यहां से T2 by T1 is equal to T3 by T4, क्योंकि 1 2 3 4 this by this is equal to this by this, T3 by T4। तो V2 by V1 is equal to V2 by V1 is equal to V3 by V4। अब जैसे ही हम यहाँ पे V3 by V4 को V2 by V1 पे रखेंगे तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1। ये जो है टर्म, ये और ये ln V2 by V1 और ये ln V2 by V1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल टर्म ऑफ द इफिशियंसी दैट बिकम्स इफिशियंसी ऑफ इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1। So the efficiency of Carnot cycle, that the formula becomes direct, we can use a simple derivation. It may ask in the university examination to write the efficiency of the Carnot cycle। So efficiency of Carnot cycle efficiency is equal to 1 minus T2 by T1। इसी को हम लिख सकते हैं R efficiency is equal to, क्योंकि Q by T is equal to अलजेब्रिक सम हीट और टेम्परेचर का जो है सिग्मा
1 minus Q2 by Q2. This is the efficiency of Carnot cycle. In yesterday's video, we discussed about the numerical on two heat source, either two heat sink. When the turn to heat is transferred to the two sink or from two source, the heat is to be generated and it operates the heat engine. This type of numerical is very important because in university exam it must asked in each year that either Kelvin, Planck and Clausius statement, second law of thermodynamics, either it's numerical, either problems. तो मेनली जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है दैट इज इफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम एक बार देखेंगे. ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग इन ए साइकिल 4800 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द इट्स डायग्राम. दिस डायग्राम एक सोर्स है, दिस वन इज द सोर्स. न्यूमेरिकल पहले हम पढ़ लेते हैं और जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से पहले गिवन डाटा को लिख ले रहे हैं. ए इरिवर्सिबल इंजन वर्किंग इन ए साइकिल 4800 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट. मतलब एक जो सोर्स है वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है Q1 दैट इज इक्वल टू 4800 किलो जूल पर मिनट. दिस इज Q1 4800 किलो जूल पर मिनट. अगर हम इसको किलो वॉट में चेंज करें तो दिस वैल्यू 4800 किलो जूल डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, तो ये वैल्यू हो जाएगी 80 किलो वॉट. इसका मतलब जो सोर्स से हीट मिल रही है वो इंजन के होते हुए टू सिंक को ट्रांसफर हो रही है. एक ये हीट सिंक है और एक ये दूसरा हीट सिंक है. यहां से सपोज करिए सोर्स से हीट ट्रांसफर हो रही है वो Q1 है, ये हीट इंजन पे गई, यहां से हम वर्क को ऑब्टेन किए, रेस्ट हीट जो है वो Q2. अब Q2 ये डायरेक्ट सिंक को ना जाके, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है इन द स्टेटमेंट द इंजन रिजेक्ट्स द हीट टू टू रिजर्वायर. हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो टू रिजर्वायर को, एक ये है और एक ये है, टू टू रिजर्वायर एट 300 केल्विन एंड 350 केल्विन. तो ये जो होगा दैट इज Q2A और ये जो होगा दैट इज Q2B. अब यहां से हीट Q1 गई दैट इज 4800 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 800 केल्विन. इसका जो टेंपरेचर है वो 800 केल्विन है, ठीक है. एंड डेवलप्स जो पावर है W दैट इज इक्वल टू 20 किलोवाट पावर. The engine rejects heat to two reservoir at 300 Kelvin and 350 Kelvin. तो ये जो है वो 300 Kelvin पे हीट रिजेक्ट कर रहा है और ये जो है वो 350 Kelvin पे हीट रिजेक्ट कर रहा है. 300 Kelvin and 350 Kelvin. Calculate the heat rejected to each sink. So we have to find out the value of Q2A and Q2B. ठीक है. इसके पहले हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें दो जगह से हीट जो है वो हीट इंजन पे आ रही थी. मतलब सोर्स जो था वो दो था, हीट इंजन के थ्रू वर्क ऑब्टेन हो रहा था, रेस्ट अमाउंट ऑफ द हीट जो है वो सिंक पे ट्रांसफर हो रही है. इस न्यूमेरिकल में सोर्स एक है, इंजन से आप ऑपरेट करेंगे वर्क डन मिलेगा और टू सिंक को जो है वो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है
जो कि Q2A और Q2B हमने एज्यूम किया है। अब इस न्यूमेरिकल में हमें जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो ये है कि यहाँ से नेट हीट Q1 अपॉन T1, क्योंकि सिग्मा Q by T is equal to constant for an irreversible process, the cycle goes that the summation of Q by T is equal to constant, so Q1 upon T1 from this process is equal to होना चाहिए था Q2 by T2, लेकिन ये Q2 दो जगह ट्रांसफर हो रही है, Q2A में भी और Q2B में भी, so this value is Q2A upon T2A plus Q2B upon T2B, वेरी सिंपल। मतलब ये जो हीट है वो इसके इक्वल होगी, लेकिन ये दो जगह ट्रांसफर हो रही है, तो इसका समेशन प्लस इसका समेशन। अब यहां से देखो Q1 निकाले हैं, 80 आया है, 80 अपॉन T1, T1 की वैल्यू इस सोर्स का जो टेम्परेचर दिया है दैट इज 800 केल्विन इज इक्वल टू Q2A, यही फाइंड आउट करना है। T2A की वैल्यू जो दिया है दैट इज 300 केल्विन, दिस वैल्यू इज 300 प्लस Q2B, T2B की जो वैल्यू है यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया, न्यूमेरिकल में दिया था 350, दिस वैल्यू इज 350, सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन वर्क, यहाँ से 22 किलोवाट मिल रहा है, ये Q1 हीट है, ये Q2 हीट है, सो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब ये W जो दिया है दैट इज 22 किलोवाट, Q1 यहाँ मेंशन किया है दैट इज 80 माइनस Q2, तो यहाँ से Q2 सॉल्व होके जो वैल्यू आएगी दैट इज 58 किलोवाट। मतलब Q2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई बाई W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 से। अब जो मेन है हमें Q2A और Q2B की वैल्यू चाहिए। यहां से Q2 जो हो रहा है वो दो जगह जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू Q2A प्लस Q2B। कैसे? Q2 ये है, यहाँ पे Q2A आया, यहाँ पे Q2B आया, तो Q2 इज इक्वल टू Q2A प्लस Q2B। Q2 की वैल्यू आई है, अभी आपने निकाला 58, तो Q2A प्लस Q2B इज इक्वल टू 58 किलोवाट। अब देखो दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल आप क्या करेंगे, Q2A की इक्वेशन और Q2B की इक्वेशन ये सॉल्व करेंगे, और यहां से सॉल्व करने के बाद Q2A की वैल्यू और Q2B की वैल्यू by solving the two simple equations we get the value of Q2A minus 138 और ये 196 kilowatt। तो what the result comes, it doesn't matter, but only we understand the process that which are followed by solving the numerical when the two source that is transferred by a heat engine and the two sink the heat is to be replaced. Suppose that thermal efficiency calculate करना है, तो eta thermal that is equal to work done upon heat supply। work done इसमें कितना है, that is यहाँ पे दिया हुआ है work done 22 है, अरे W है, heat supply Q1 है, तो 22 by Q1, Q1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है that is 80। ठीक, अब जो भी सॉल्व हो वो आपकी इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी विल बी ऑलवेज इन परसेंटेज। ओके, नाउ अनदर न्यूमेरिकल हियर in the numerical a reversible engine working in a cycle 6400 kilojoule per minute and 3600 kilojoule per minute from two source at 500 Kelvin and 300 Kelvin। अब सोर्स जो है वो दो है, इसके पहले भी हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। तो 500 केल्विन और 300 केल्विन का दो सोर्स है जो कि ऑपरेट हो रहा है बाय ए हीट इंजन। इट डेवलप्स
22 kilowatt power, the engine reject heat to the reservoir at 150 Kelvin. Calculate the heat rejected to each source. अब यहाँ पे सबसे पहले रिवर्सेबल इंजन है that is working in a cycle 6400 3600 to two source. It develops 22 kilowatt power. The engine rejected to the reservoir at 150 Kelvin. Calculate the heat rejected to the sink. कैसे इसको करेंगे? ये दो सोर्स है, एक सोर्स ये है, एक सोर्स आपका ये। दो सोर्स हो गया। मान लीजिए यहां से ये Q1A है, ये हीट यहां से लिबरेट हो रही है, यहां से जो लिबरेट हो रही है ये Q2A है। ये ऑपरेट करेगा हीट इंजन पे, यहां से वर्क डन। अब यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये है आपका सिंक। दिस वन इज सोर्स, दिस वन इज सोर्स एंड दिस वन इज द सिंक। न्यूमेरिकल में बस चेंज क्या हुआ, इसके पहले नीचे दो सिंक पे ट्रांसफर हो रही थी, अब ये दो सोर्स से हीट आ रही है। एक जो है इसका Q1A जो है वो 6400 किलो जूल पर मिनट है। यहां से जो हीट आ रही है दैट इज 3600 किलो जूल पर मिनट है। डेवलप जो पावर कर रहा है दैट इज अगेन 22 किलोवाट। अब यहां से नेट हीट जो है वो Q1 आएगी, यहां से जो आएगी वो Q2 आएगी। अब सोर्स का जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन है और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। द इंजन रिजेक्ट द हीट टू टू रिजर्वायर एट टू द रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर 150 केल्विन है। अब यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है, इक्वेशंस अगेन जो बनेगी दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q1A प्लस Q2A, ये इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब Q1A भी दिया है और Q2A भी दिया है दैट इज 6400 प्लस Q2A न्यूमेरिकल में मेंशन है 3600। ये दोनों जोड़ लेंगे, वर्क डन दिया है 22। Q1 जो है वो इन दोनों को जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी तो जो Q2 की वैल्यू है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ए सिंपल बाय अंडरस्टैंडिंग द हाउ द फिगर बिकम्स फॉर द टू सोर्स एंड द टू सिंक। तो बेसिकली इन द heat source and heat engine, either heat pump, we discussed that how to draw the figure for heat engine, how to draw the figure for heat pump, the two source and two sink, either a single source by a single sink. We can discuss the total heat transfer by either source, either sink, either pump. So basically in the second law of thermodynamics we study how to calculate the total heat by reservoir, either by source or sink. इसी से एक टर्म और आया है that is PMM2। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था PMM1। ये PMM2 क्या है, नेम सेम है, P फॉर परपेचुअल, M फॉर मोशन, परपेचुअल मोशन, और M फॉर
machine. Rule 2. PMM2 perpetual motion machine 2. तो इसको समझने के लिए क्या, इट वायलेट्स द, Q है ये W है, Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 100% या efficiency is equal to 100%. In the perpetual motion machine 2, it violates the second law of thermodynamics. In first law of PMM1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये कहा था कि without gaining the energy we continuous produce the वर्क, मतलब बिना एनर्जी को रिसीव किए हम डायरेक्ट वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो PMM1 ये कहता है कि विदाउट रिसीविंग द एनर्जी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द वर्क, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज विदाउट गिविंग एनी हीट वी कैन नॉट प्रोड्यूस द वर्क डन। तो PMM1 जो है बिना एनर्जी दिए वर्क में कन्वर्ट करने को प्रिंसिपल को कहते हैं PMM1। जो PMM1 है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट्स करता है। PMM2 क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायोलेशन है। इसमें ये कहा गया है कि द PMM2 इट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कन्वर्टेड टू टोटल वर्क डन, इट मींस दैट द 100% एफिशिएंट, जितना ही Q मिल रहा है हीट इंजन में उतना ही वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Q इज इक्वल टू W। तो अकॉर्डिंग टू द परपेचुअल मोशन मशीन रूल 2 दैट इट कन्वर्ट्स द टोटल अमाउंट of heat into net work done. But practically it cannot be possible that no heat engine that converts total heat into total work done. कुछ ना कुछ जो हीट है वो इन्वायरमेंट में जरूर वेस्ट होगी। तो यही है आपका वायलेशन ऑफ द second law of thermodynamics. This is rule number second, perpetual motion machine, that Q is equal to 100 W and that is equal to the 100%. So it violates the second law of thermodynamics, that no machine that it converts that equivalent amount of heat into net work done. Okay, so in the today video we discuss about the calculate the total heat supplied by the source and either by sink or individual reservoir, then Carnot cycle and PMM2. Okay, thank you.